All right. Hi everyone. Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. You all are great. So here we are with another video. That is, you can see on your screen itself that here we are going to talk about a specific thing. As in, I've covered a separate video on this as well. You can just see in the video section. I've covered separately all of the things which are related to it. When I talk about India being at the fourth position, okay, we also say that we have surpassed Japan, but most of the aspirants were here who continuously were asking me questions on my Telegram channel and through mail ID as well. That, ma'am, is this the exact data? Can we rely on it? And can we say that we have exactly surpassed Japan? Or what is the case which is related to it? Now, here in this 10 minutes video, we'll try to decode this particular thing within the time of 10 minutes. And we learn most of the important terminologies which are important part of your economy as well. Okay, so starting with it, before I jump onto it, everyone knows that it is a congratulating thing for all of us. A lot with that, it came up with skepticism also, that are we exactly on it, or what is the case? Okay, but exactly when I talk about the rest of the things, when I talk about the important concepts which are related to it, I hope you will get an idea here. Okay, so सबसे पहले अगर मैं किसी important concept की बात करूं, so we have 2-3 terminologies here which are very very important to consider. So सबसे पहले we have GDP. Okay, सबसे पहले we have GDP. Now what is GDP? It's a total value of goods and services that is produced in a particular country, in the boundaries of a particular country within the time period of 1 year. Okay, that is what is the GDP. Now here when I talk about the calculation of it, so this is calculated on the basis of the prices, as in the current prices or the constant prices that we have. So you have bifurcation on the basis of that. So you have nominal prices and you have real GDP as well. ठीक है, nominal GDP and real GDP also. अब अगर मैं नॉमिनल जीडी की बात करूं, जीडीपी की बात करूं, तो ये किसके ऊपर है? करंट प्राइसेस के ऊपर. ठीक है, दिस इज ऑन दी करंट प्राइसेस दैट वी हैव, एज इन जो भी करंट इन्फ्लेशन चल रहा है या फिर जो करंट प्राइसेस का जो रेट है उसके ऊपर बेस्ड है. और जब हम रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो ये किसके ऊपर बेस्ड रहती है? ये बेस्ड रहती है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर. ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस में अगर मैं बेस लेवल की, फिर अगर मैं बेस प्राइस की बात करूं, तो ये क्या है? बेस ईयर हमारे पास कौन सा है? दैट इज 11-12. Of course the things, the talks are going that making it reach out to 17-18, but for now it is 11-12 only. Okay, सो यहाँ पे अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, तो ये कंप्लीटली किसके ऊपर अलाई करता है? हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर या फिर हमारे जो करंट प्राइसेस है उनके ऊपर अलाई करता है. ठीक है, अब बिफोर आई गो ऑन टू इट एंड अदर थिंग्स, next concept that we have is here, that is your PPP based GDP. Okay, your purchasing power parity. That is what? Purchasing, wait, purchasing power parity. Okay, now purchasing power parity says that it checks the cost of living and the price level between the countries. ठीक है, कि हमारी कंट्रीज में जो प्राइजेस है प्रोडक्ट्स के वो कितने महंगे हैं, अगर मैं किसी और कंट्री के साथ प्रिपेयर करूं वो कितने महंगे हैं. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दैट विद इन, if there is a quantity, as in that if there is a cup of tea, okay, क्या उसका प्राइस इंडिया में कितना है और उसी सिमिलर प्राइस जो है वो यूएस में कितना है, मे बी, या फिर किसी और इकोनॉमी में उसका प्राइस जो है वो कितना है. ठीक है, सो हम प्राइजेस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो कैलकुलेशन वो करते हैं, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट, कि हाँ इस इकोनॉमी में या फिर इस पर्टिकुलर एक कंट्री की इकोनॉमी में उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या तो फिर. ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी हमें क्या बताती है कि क्या उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो कोई चीज है या फिर जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है लोगों का, या फिर जो हमें चीजें मिल रही हैं, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आर इट आर दीज कॉस्टली इन नेचर, या फिर हम उनको इजिली जो है अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यू हैव इज हियर, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम. ओके, वेयर हैज द कर्सर गॉन? वेट, दैट इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम एज इन जब हम टोटल जो हमारे पास जीडीपी है या फिर जो हमारे पास टोटल नंबर है, जब हम उसको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन के साथ, सो वील गेट टू नो दैट जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है. ठीक है, नाउ दिस tells you about the head per head. Okay, but again I will tell you that this is not the exact situation. Of course अभी हम अगर पर कैपिटा की बात करूं, तो अगर मैं स्पेसिफिकली जापान और इंडिया के अंदर कंपैरिजन करूं, बिकॉज दिस थिंग
the thing is in news that we have surpassed Japan. When it comes on to per capita, have we exactly surpassed it? The answer is no. We're still in between 3,000 to 4,000, dollars here. But when I talk about Japan specifically, this is 12 times ahead of us. Okay, this is 12 times, not even single number. This is in double digit. That is 12 times ahead of us. So here is the concern, and here is the rest of the things which are associated with it. Okay, now I want to simplify more. Wait. Okay. So let's take an example here. Wait. Okay. So considering, सबसे पहले तो we have to consider an exchange rate here. Okay. Considering that our exchange rate is what? Okay. So considering that 1 rupee. Okay. Rupee 1 is just, or $1, sorry. This is $1 just equivalent to rupee 83. Okay, and considering that my total earning is 30,000 here. Okay, this is 30,000. This is not anything, but this is total 30,000. Okay, 30,000. Now here when I try to turn it into, or when I talk about the exchange rate specifically, so dividing it with 30,000 and 83 specifically, I'll get $360. Okay, so this is an exchange rate here. I got an idea here. Okay, now considering a food here, because purchasing power parity is all about that in this much of amount, how much I can purchase, और इस particular amount में मेरे पास जो कितना जो cost of living है वो कितनी है, ठीक है, मैं कितना जो चीजें हैं वो खरीद सकता हूँ. So specifically taking an example here कि इंडिया में इंडिया में क्या है कि जो एक प्लेट है, ठीक है, 1 plate of food is costing me what? 100 rupees. ठीक है, 1 plate of food is costing me, consider, 100 rupees. Okay, now same plate is in X country. ठीक है, now this is costing me what? This is costing me, considering $10. ठीक है, this is $10. Now I have to see that if I have 30,000 in my hands, in my pocket, and the plate, when I talk about the rupee, as in the cost of plate here, that is 100. So in that, how much can I purchase? So that is what? 3,000, है ना? So with 30,000 here, with 30,000, sorry, 300. This is 300, okay? With 30,000 here, I can purchase 300 plates of food, okay? I can purchase 300 plates of food. Now considering example, और when I want to see कि इतने में ही अगर 300 plates जो है, अगर मेरे को डॉलर्स में लेनी है, अगर मेरे को $10 के साथ इसको करना है, तो कितना आएगा? दैट इज 3,000. ओके, सो इट मीन्स कि अगर मेरे को 300 जो अगर प्लेट्स लेनी है, दैट इज इन डॉलर, तो मेरे को कितना स्पेंड करना पड़ेगा? मेरे को स्पेंड करना पड़ेगा 3,000. एंड व्हेन यू convert this, you'll get the increase in it. So this shows that when I talk about the X country, that is more costly when I compare it with India. So this is how particularly or exactly comparison is made when I talk about purchasing power parity. Okay, so we saw this thing कि हमारे जो इंडिया है ना, as compared to the other nations, as compared to the X nation, हमारा जो cost of living है यहाँ पे सस्ता है, ठीक है. So here is a twist when I talk about the India being being 4th largest economy, वो क्या है? नॉमिनल प्राइस पे है. बट जब मैं परचेजिंग पावर पैरिटी पे बात करती हूँ, सो हियर इज अ थिंग कि हमने, या फिर अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ, सो व्हेन डिड वी बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय परचेजिंग पावर पैरिटी एस्टिमेट्स. सो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे मैम हम तो 4th पोजीशन पे थे. तो यहाँ पे ही डिफरेंस जो है सबको क्लियर होना चाहिए कि जब हम पोजीशन की बात करते हैं, जब हम ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करते हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एस्टिमेट्स दैट वी आर डूइंग. ओके, चाहे हम किसी पे अगर नॉमिनल पे लगा रहे हैं, सो वी सॉ दैट वी आर एट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हियर. When I talk about purchasing power parity, so we become 3rd largest economy. Now, and not from now. In 2009 itself, India overtook Japan in purchasing power parity based GDP. Okay, now this milestone occurred during the time tenure of the Manmohan Singh led UPA government. India had retained 3rd positions ever since, behind only China and United States. The purchasing power parity based rankings reflects India's large population and lower
cost of living as well, which boosts its effective domestic consumption. Okay, so this is how rankings plays its game here. और जब मैं rankings की बात करती हूँ तो अलग अलग estimates के ऊपर depend करती है. This is what I wanted to mention specifically to all of you so that you people do not get confused. Okay, now that are mentioned in this particular slide itself. हो गया. अब हम बात करेंगे नॉमिनल प्राइजेस के बारे में. सो वी रेड दिस थिंग कि हमारे, अगर मैं नॉमिनल प्राइजेस की बात करूँ, फिर अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ, सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इट्स अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड country within the borders of the country during a specific time, measured at the current market prices without adjusting for inflation. और जो हमें रियल सिनेरियो वो कौन बताता है, दैट इज रियल जीडीपी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमें जो पिक्चर मिलती है वो थोड़ी सी ब्लरी मिलती है. ठीक है, अब वो कैसे ब्लरी है, आई विल गिव एन एग्जांपल हियर. सो हमने क्या बोला कि हम क्या है, हम यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. ओके, वी आर हियर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट हियर इज अ ह्यूज रोल ऑफ एक्सचेंज रेट एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी एग्जाम्पल लूंगी दैट इज वेरी हाइपोथेटिकल इन नेचर. ओके, दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, you need not to consider it as a exact one. ठीक है, now considering that I have, or my economy is $300, consider hypothetical example. Okay, very hypothetical example. अब जो यहाँ पे exchange rate चल रहा है that is maybe 75. okay, maybe 75. now you have to see that when we are converting, okay, maybe 300 trillion economy, जो मैंने यहाँ पे बोला कि 300 trillion economy हमारी economy है, और यहाँ पे exchange rate क्या है, 75. so when I'll calculate it, तो मेरी जो इकोनॉमी है, जब हम एक्सचेंज रेट के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे, सो मेरी इकोनॉमी, मेरे को क्या पता लगेगा कि हमारी जो इकोनॉमी वो कितनी है, दैट इज 4 ट्रिलियन, दैट इज $4 trillion. ओके, दैट इज $4 trillion. या फिर हम क्या है, हम जो है एक फोर्थ पोजिशन पे. ठीक है, हम क्या आते हैं, हम जो है फोर्थ पोजिशन पे आते हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट दैट इंडिया, और यहाँ अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो करेंसी है, फिर जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट हो जाता है. ठीक है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है. मेरे पास क्या है, $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज मे बी. ठीक है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग. ठीक है, मैंने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, जो मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैंने इंक्रीज नहीं करी, डिक्रीज नहीं करी, मैंने प्रोडक्शन को यहाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया. दिस इज entirely, the process is entirely based, going on the basis of this exchange rate only. Now considering the my exchange rate, or the currency has been depreciated. ठीक है, जो इकोनॉमी, जो हमारी जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो चुका है, ये मैंने कंसीडर कर लिया. अगेन दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ओनली, इट हैज बीन डिक्रीज्ड, इट हैज बीन डेप्रिशिएटेड. सो नाउ कैलकुलेटेड यू विल गेट एज 3.5 something. okay, so here we saw that it has again lowered down. We have not touched anything, we have not touched anything, as in we have not focused towards the manufacturing as well, we have not focused towards anything, we have not focused towards production as well. But here is a change and here is a twist कि यहाँ पे जो हमें जो एग्जैक्ट पोजीशन पता लगती है ना, वो सिर्फ एग्जैक्ट ही नहीं है, रादर इट इज मोर हेजी इन नेचर. अगर मैं किसी इकोनॉमी की बात करूं कि उसकी अगर जो करेंसी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, दैट इज अ वीक करेंसी एज कंपेयर टू डॉलर हियर, सो वो क्या होगा, उसकी जो इकोनॉमीज है, यू कैन जस्ट सी बाय योरसेल्फ. ठीक है, दैट इज द रीजन वी से आई टॉक अबाउट नॉमिनल जीडीपी, या फिर अगर मैं उसकी कैलकुलेशन की बात करती हूँ स्पेसिफिकली, तो वो क्या है, उतना हीजी नंबर्स बताती है, नॉट द एग्जैक्ट वन. सो हाउ डू एक्सचेंज रेट्स अफेक्ट द नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग हियर. सो सबसे पहले हमें इसके ऊपर एंटायरली डिपेंडेंट किसके ऊपर रहना, मतलब ये जो हमारा, हम जब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, सो वी आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द कन्वर्जन डिपेंडेंसी. ओके, देयर इज वी आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द कन्वर्जन रेट. देन जो एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएशंस है ना, वो डिस्टॉर्ट करता है रैंकिंग को. ठीक है, एज वी सॉ वी वर बिफोर 4th and then became 3.5, as in there were no improvement, there were no change in the manufacturing, in the production, but again due to the change in the currency rate itself, we saw the fluctuation in the ranking itself. Okay, then again it's a kind of unfair comparison across the countries, but when we know this thing that again कि जो nominal GDP है वो हमें exact situation नहीं बताता है, but we still go with it. Why?
बिकॉज एक तो हमें एक स्टेबल जो करेंसी है उसका पता लग जाता है ना, स्टेबल करेंसी भी आई वुड से कि, बट एक स्टेबल सिचुएशन का पता लग जाता है, एज इन कि अब हर एक कंट्री में जो एक इन्फ्लेशन रेट है दैट इज डिफरेंट इन अ मैनर, है ना, एवरीवन नोज दैट कि हर एक जो कंट्री है उसका जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज अगेन डिफरेंट इन अ मैनर। सो एक एक अगर मैं एक बात करूं कि एक स्टैंडर्ड लेवल पे या फिर एक एक पोजीशन पे हमें रह के अगर हमें जो चीजें हैं उनकी रैंकिंग्स हैं, फिर जो ग्लोबल रैंकिंग्स उनको सॉर्ट आउट करना, ओके, है ये उसको भी रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन डन हियर, ओके, सो दिस रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक पावर एज वेल। एंड सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉमन करेंसी, सो इट जो हमारा कंपैरिजन है ना एक कॉमन करेंसी से, वो इजी हो जाता है। व्हेन आई टॉक अबाउट डॉलर से, इट्स अ कॉमन करेंसी हियर, उसके साथ कंपैरिजन करना इट गिव्स एन इजीनेस। व्हेन आई टॉक अबाउट कि जो कंट्रीज यहाँ पे कंपैरिजन में लो होंगी तो उनका रैंक कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ दिखता हुआ जाएगा, एंड दोज कंट्रीज हु आर स्ट्रॉन्ग हियर उनका रैंक जो है हमें कहीं ना कहीं जो है वो बेहतर दिखने को मिलेगा। सो दैट इज इट, दैट इज इन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, दैट परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे जो चीजें हैं वो कैसे चलती हैं, और जब मैं नॉमिनल की बात करती हूँ तो वो कैसे चलती हैं। सो दिस ऑल व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्लोबल रैंकिंग, दिस ऑल इज डिपेंडेंट ऑन द estimates that we do. So if you have still any doubt, you can just join my Telegram channel, which is Economy with Payal. Of course, you'll find your solution